Hello and welcome, my dear students. Today we'll talk about stereoisomerism. In previous videos, we finished actually structural isomerism category. This is the next one, that is the stereoisomerism. What basically stereoisomers are? These are basically those molecules having same molecular formula, and same structural formula, or we can say same structures but different arrangement of atoms or groups in space. So different arrangement of atoms or groups in space, we call those molecules or those isomers as stereoisomers. So stereoisomers वो वाले isomers हुआ करते हैं जिनका molecular formula same है और structures भी उनके same है, लेकिन उनका जो difference है that is with regard to different arrangement of atoms or groups in space. We call those isomers as stereoisomers or space isomers. For example, suppose हमारे पास यहाँ पे A है, it's connected to B, it's connected to C, then it's connected to D. In another category, in another isomer, we have B, that is D, and it's A over here. You can see A is connected to B, B is connected to C, C is connected to D, so the connections are same, so the structures are same. There is no change in structure, but the point is that here in this case, this is the part which is same in both cases. This is the part which is same in both cases, but in first case A is upwards, in second case A is downwards. So the difference between the two is that the atom or the group is different with regard to its space, orientation with regard to its space. That's it's upwards in the first case, it's downwards in the second case. ये जो difference है which develops leads to stereoisomers. Now ये जो stereoisomers होते हैं, these are of two types. Number one is geometrical isomerism. So we are having two types. Number one is geometrical isomerism, and number second is optical isomerism. So optical isomerism we'll be talking about later on. First of all, we'll deal with geometrical isomers or geometrical isomerism. What is it all about? So we have geometrical isomerism. Geometrical isomerism एक stereoisomerism है. अब ये कैसे डेवलप होता है मॉलिक्यूल्स में? It arises due to restricted rotation about double bonds और रिंग्स. वो वाला आइसोमेरिज्म जो डेवलप होगा, जो अराइज होगा ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड्स और रिंग्स, उस आइसोमेरिज्म को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके 4 ग्रुप्स अटैच्ड है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे भी दिखाऊंगा मैं. सपोज इट्स A over here, it's B over here, it's A over here, it's B over here, it's A over here, it's B over here, but in this case it's A upwards, B downwards. So the different spatial arrangement है इन दोनों में, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स है क्योंकि इसमें A डाउनवर्ड्स है
B अपवर्ड्स है, इसमें A अपवर्ड्स है, B डाउनवर्ड्स है, बट द स्ट्रक्चर्स आर सेम, सो दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर द स्पेस आइसोमर्स, और वी कैन से स्टीरियो आइसोमर्स, बिकॉज स्टीरियो इसमें डिफरेंट है। स्पेस में इन एटम्स का होना दैट इज डिफरेंट इन द टू आइसोमर्स, दैट्स व्हाई दे आर स्पेस आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ अगर आप इसको चाहेंगे, इसको रोटेट अगर करेंगे, you think that I'll hold this carbon and rotate it so that A goes upwards, B goes downwards, तो ये बनेगा, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? because you cannot rotate it. why? because there is double bond. About double bond there is restricted rotation. क्यों restricted rotation है? क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, सो यू कैन नॉट रोटेट इट, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से you cannot rotate this to get this, so these are the two different molecules। जब ये two different molecules है लेकिन उनका जो molecular formula वो same है, उनकी structures भी same है, we call those isomers as geometrical isomers। तो इसमें जो है इसमें similar groups on the same side है तो ये कहलाता है cis isomer, इसमें similar groups on the opposite side है तो ये कहलाता है as trans isomer। So we have cis isomer, we have trans isomer. That is why geometrical isomerism is also called as cis trans isomerism. Cis trans isomerism. Cis trans isomerism. So जब similar groups होंगे on the same side, similar groups attached to double bond or on the same side, we call it cis. जब ये similar groups opposite side में होंगे तो we call it as trans. That's why cis trans isomerism is also geometrical isomerism. I hope you understand it. दूसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यहाँ हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरा आइसोमेरिज्म क्या बनेगा इसका आइसोमर? एक हाइड्रोजन नीचे, तो यहाँ से जो है हमारे पास है मिथाइल ग्रुप ओवर हियर, यहाँ से मिथाइल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, सो इट इज सिस आइसोमर। इसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट, वी कॉल इट ट्रांस आइसोमर। सो वी हैव सिस ट्रांस आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब ये खाली डबल बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं होता, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू व्हाट? रिंग्स। आपके पास एक रिंग है, सपोज आपके पास एक रिंग है, यहाँ we have here H, we have here CH3, here we have here CH3, downwards we have here H। ये ट्रायंगल प्लेन में है तो ऊपर H है, नीचे मिथाइल है, नीचे मिथाइल है, ऊपर H है, सो मिथाइल्स आर ऑन द सेम साइड। तो दूसरे में ऐसा हो सकता है that we have downwards H, ऊपर से मिथाइल है, तो आप देख सकते हैं मिथाइल्स आर ऑन द सेम साइड या हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड, we call it cis, and hydrogens are on the opposite side or methyls are on the opposite side, we call it trans। so इस तरीके से जो है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डेवलप होते हैं। तो कैसे आप लगाते हैं सिस नॉमेनक्लेचर या ट्रांस नॉमेनक्लेचर? ये आप लगाते हैं जब सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड होंगे तब सिस आता है, जब वो अपोजिट साइड में होंगे तब उनका नाम आता है ट्रांस। आप यहां से भी देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ अगर इसमें अब कौन कौन से सिस्टम डबल बॉन्ड, अब कार्बन कार्बन के दरमियान तो नहीं होगा हमेशा, इट कैन बी बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन ऑल्सो, दे ऑल्सो शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। लेट मी टेल यू, वी आर हैविंग 4 types of systems, 3 types of systems actually। one is carbon double bond carbon, carbon double bond nitrogen and nitrogen double bond carbon। इसमें जो नॉमेनक्लेचर आप यूज करते हैं दैट इज नॉर्मली सिस एंड ट्रांस, or we can say E and Z। When will you use E and Z? I'll tell you from short while। इसमें nomenclature आप usually इस्तेमाल करते हैं as sin and anti, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं आप sin anti और cis and trans, cis and trans। ये डबल बॉन्ड्स जो है बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन, बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये दिखा सकते हैं, दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। What actually are the conditions for showing geometrical isomerism? I'll tell you from short while. Before that, I'll tell you what do you mean by this E and Z nomenclature। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास H है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ऑब्वियसली ये सिस होगा बिकॉज टू सिमिलर ऑन द सेम साइड।
अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज H, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, तो दिस इज H, टू सिमिलर ऑन द अपोजिट साइड, दिस इज ट्रांस। ठीक, अब मसला यह है कि अगर चारों एटम्स डिफरेंट होंगे, इफ ऑल द ग्रुप्स और एटम्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर डिफरेंट, देन तब आप क्या करेंगे? सपोज हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन एंड यहां पे आयोडीन। इन द नेक्स्ट केस यू आर हैविंग हियर क्लोरीन, हियर फ्लोरीन एंड हियर ब्रोमीन, हियर आयोडीन। तो ये दो आइसोमर्स है। अब मसला ये है कि आप किसको कहेंगे सिस, किसको कहेंगे ट्रांस? उसके लिए हमारे पास रूलिंग है, दैट्स कॉल्ड एज CIP रूलिंग। व्हाट इज CIP रूलिंग? C स्टैंड्स, तीन सेंटेंस का नाम है। C इज कान, CAHN, I स्टैंड्स फॉर इन गोल्ड एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिलॉग, प्रिलॉग, कान इन गोल्ड प्रिलॉग रूलिंग। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपको जो है, अगर you have to give priority, so give priority to atoms as per molecular mass, molecular mass के हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है। after given priority, if same priority atoms are on same side, are on same side, it is Z isomer, that's called zeusamin. Zeusamin means together on the same side, that is Z isomer. If opposite, if on opposite side, अगर वो same priority वाले opposite side में आएंगे, then this is E isomer, that is antigen. इसे लिखते हैं एंटीजीजन, लेकिन पढ़ते हैं इसके एंटीजन, ENTEGEGEN। यहाँ पे ZUSAMIN, ज़्यूसामिन। ज़्यूसामिन मीन्स Z, एंटीजन मीन्स अपोजिट, ज़्यूसामिन मीन्स टुगेदर। सो अलोंग सेम साइड अगर सेम प्रायोरिटी वाले होंगे तब Z आएगा, अगर अपोजिट साइड में आएंगे सेम प्रायोरिटी वाले एटम्स तो E आएगा। सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी as far as their atomic mass is concerned, atomic mass is concerned। तो कैसे आप देखेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन के अटैच में दो एटम्स है, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन इज हैविंग मोर एटॉमिक मास देन फ्लोरीन, सो प्रायोरिटी 1 इसका आएगा, इसका 2 आएगा। अगर इसमें 2 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अगर इसमें देखेंगे आयोडीन इज हैविंग मोर मास देन दैट ऑफ ब्रोमीन, सो इट्स नंबर 1। सो सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स जो है, सेम प्रायोरिटी वाले एटम्स जो है, दे आर ऑन सेम साइड अगर होंगे तब Z आएगा, अगर अपोजिट आएंगे तब E आएगा। सिंस दे आर अपोजिट सो E आइसोमर है, दिस कॉल्ड E आइसोमर, एंटीजन आइसोमर। अगर इसमें देखेंगे आप, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1, दिस प्रायोरिटी नंबर 1, दे आर ऑन द सेम साइड, सो दिस इज Z आइसोमर। तो ये Z और E, ज़्यूसामिन और एंटीजन, आप कैसे बताते हैं Z आइसोमर्स, E आइसोमर्स? दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ EZ nomenclature, EZ nomenclature of EZ nomenclature कैसे देते हैं इन आइसोमर्स को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को? ऑन द बेस ऑफ CIP रूलिंग। वो क्या बताता है? इट टेल्स दैट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू एटम्स एज फार एज देयर एटॉमिक मास इज कंसर्न्ड। अगर सेम प्रायोरिटी वाले एटम्स एक ही साइड से आएंगे तो Z आएगा, इफ दे कम ऑन द अपोजिट साइड देन इट्स E। सो इस तरीके से जो है आपके आइसोमर्स बनते हैं। ये तब अप्लाई होता है जब आपके चारों एटम्स और ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होंगे। अब मसला ये है कि सपोज आपके पास ये एटम सेम होंगे, अगर पहला वाला एटम सेम होगा तो आपको कंपेयर करना है नेक्स्ट एटम। सो इफ अटैच्ड एटम्स आर सेम, अटैच्ड एटम्स आर सेम, देन कंपेयर next atoms, next attached atoms, compare next attached atoms। for example आपके पास है C डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल, यहां पे इथाइल और यहां पे जो है आपका प्रोपाइल है C3H7। सिमिलरली आपके पास यहां पे दूसरा एक आइसोमर है, दैट इज CH3 ओवर हेयर। यहाँ पे इस वक्त C3H7 हम करेंगे, यहाँ पे इस वक्त हम करेंगे C2H5। अगर आप देखेंगे चारों एटम्स डिफरेंट है तो यहाँ पे अप्लाई हुआ एंड्स और नॉमेनक्लेचर। तो देखिए पहला वाला एटम क्या है, कार्बन है, तो नंबर 1 आएगा, इसका क्या आएगा? ओब्वियसली नंबर 2 लिखने की जरूरत है नहीं।
अब देखिए यहाँ पहला वाला एटम है कार्बन, यहाँ पे भी पहला वाला एटम कार्बन है, तो कैसे करेंगे? अब नेक्स्ट एटम अटैच्ड है कार्बन, नेक्स्ट एटम इसके भी अटैच है कार्बन, लेकिन थर्ड एटम अटैच है हाइड्रोजन, लेकिन इसका थर्ड एटम पे अटैच है कार्बन। मतलब इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 ही कार्बन है, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी आएगा, ये नंबर 2 आएगा। सो दे आर ऑन द अपोजिट साइड, इट्स ई, एंड यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो ये बिकम्स Z। इस तरीके से जो है आपको कंपेयर करना है नेक्स्ट अटैच्ड एटम्स को। You have to compare the next attached atoms. Similarly, I will tell you one more thing that is here. Suppose आपके पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है C2H5 इथाइल ग्रुप, यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको कैसे करेंगे आप? हाउ कैन यू नंबर इट? देखिए पहले यहाँ पे एटम है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो दूसरा एटम देखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा कार्बन है C2 है, तो इट्स ऑब्वियसली प्रायोरिटी 1, इट्स ऑब्वियसली प्रायोरिटी 2। फाइन, तो ये प्रायोरिटी 1 आएगा, 2 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इट्स 1। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन अटैच। लेकिन अब कैसे डिसाइड करेंगे आप? हमेशा याद रखना चाहिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड की जगह एक कार्बन आप डाल सकते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड की जगह 2 कार्बन डाल सकते हैं आप। तो ऑब्वियसली एक पाई बॉन्ड जो है उसके बदले एक कार्बन डाल सकते हैं आप। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, सी 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 सिंगल बॉन्ड सी, ये सी अपना है, ये सी ये अपना सी है, एक पाई बॉन्ड की जगह एक कार्बन, दूसरे पाई बॉन्ड की जगह दूसरा कार्बन। सो यहां पे अटैच किसको है? इस डबल बॉन्ड को। सिमिलरली अगर यहां पे देखेंगे, इट इज सी, यहां पे एच है, ये अपना कार्बन है, अब एक पाई बॉन्ड की जगह एक कार्बन। अब देखिए इस कार्बन पे कितने कार्बन है? एक ये और ये वाले 2 कार्बन बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3-4 कार्बन से टोटल में। इसमें कितने आएंगे? एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, 3 कार्बन टोटल में। तो इसमें ज्यादा कार्बन है, मीन्स मोर मास, सो इट्स प्रायोरिटी 1, इट्स प्रायोरिटी 2। सो 2 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इट्स 2, इट्स 1, 1 अपोजिट है, तो ये ई आइसोमर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो हर एक पाई बॉन्ड की जगह आप C इंक्रीज करेंगे, यहां से भी C इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ एक ही इंक्रीज कर सकते हैं C बिकॉज ऑफ 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 कार्बन आएंगे, यहाँ पे 4 कार्बन आएंगे। ऑब्वियसली दिस इज 1 प्रायोरिटी एंड दिस इज इन कंपैरिजन टू दिस दिस इज 1 प्रायोरिटी। अपोजिट साइड में आएंगे तो E होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ इस तरीके से जो है आपके पास Z एंड E आइसोमर्स आते हैं, और वी कैन से सिस एंड ट्रांस आइसोमर आते हैं। अब मसला यह है कि व्हाट मॉलिक्यूल्स, विच आर द मॉलिक्यूल्स विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट आर द कंडीशंस, उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। दिस कंडीशंस आर, हमारे पास है कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज मस्ट, प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर, दैट इज स्टीरियो सेंटर मतलब डबल बॉन्ड और रिंग इज मस्ट। सो या तो रिंग होना चाहिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो मस्ट है, उनको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर्स, ये जरूरी है। नंबर 2 कंडीशन, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप होता है डबल बॉन्ड की वजह से ही या फिर रिंग की वजह से ही। सो दीज आर कॉल्ड एज स्टीरियो सेंटर्स, ये जरूरी होने चाहिए मॉलिक्यूल में, तब वो दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2nd कंडीशन, जो डबल बॉन्ड में का एटम्स अटैच होते हैं, आप देख सकते हैं यहां जो डबल बॉन्ड में एटम्स अटैच होते हैं, ये 2, यहां से भी 2 एटम्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं, या फिर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि रिंग में जब ये 2 अटैच होते हैं, 2-2। So condition number 2 is atoms, और we can say ऐसे हम बताएंगे doubly bonded atoms और रिंग एटम्स मतलब sp3 कार्बन वाले, sp3 कार्बन वाला
must contain two different groups or electron densities. डबली बॉन्डेड एटम जो होते हैं या रिंग एटम्स जो होते हैं, उनमें जो अटैच्ड एटम्स होते हैं मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ये कि सपोज आपके पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्लोरीन। अब देखिए इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे, सो डबली बॉन्डेड एटम्स मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पे यहां मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स है, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, फाइन, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे इसमें एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से भी हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स, इट कंटेन सेम एटम्स। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा बिकॉज कंडीशन इज नॉट ओबेड। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे ये डिफरेंट होने चाहिए, यहां पे मिथाइल है, यहां पे हाइड्रोजन है, अब यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, सो यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। अब देख सकते हैं ये तो इस कार्बन पे रिंग एटम पे अटैच्ड एटम जो है वो डिफरेंट है, फाइन, लेकिन इसमें डिफरेंट है ही नहीं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं दिखाएगा। सो दो एडजेसेंट कार्बन पे कम से कम होना चाहिए, इन रिंग दो एडजेसेंट कार्बन पे कम से कम होना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स। सो रिंग एटम्स मस्ट कंटेन टू डिफरेंट एटम्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, तब ये दिखाएगा व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सेकंड कंडीशन है। सो कंडीशन नंबर 1 इज स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए, वो कौन से है, डबल बॉन्ड है और रिंग है, ठीक। अब उस डबल बॉन्ड पे जो एटम्स अटैच होते हैं या ग्रुप्स अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होते हैं, या रिंग पे भी वो दो एटम्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होते हैं, रिंग्स होते हैं, वो टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए या फिर टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होने चाहिए। आई हैव शोन यू हियर। थर्ड कंडीशन इज अगर डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है, अगर साइक्लोअल्कीन में ये होगा, सो डबल बॉन्ड in cycloalkenes do not show GI, geometrical isomerism, if carbons in ring कितने हैं, लेस और इक्वल टू 7। अगर रिंग में कार्बन्स 7 है या 7 से कम है तो डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बनता है। डबल बॉन्ड डज नॉट बिकम स्टीरियोजेनिक सेंटर इफ in ring it contains 7 carbons or less. However can show, ये दिखा सकता है GI if carbons in ring are greater or equal to 8. For example, आपके पास है ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है। जब इसमें डबल बॉन्ड है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो H एक साइड सिस आइसोमर, लेकिन एक ही बनेगा, ट्रांस बनेगा ही नहीं इसमें। सो देयर इज नो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इट्स ओनली सिस। सो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, आइसोमर नहीं है, तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सो इफ द कार्बन इन रिंग आर 7 और 7 से कम है, तब जो है आपका जो डबल बॉन्ड है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं बनेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें 8 कार्बन होंगे, अगर उसमें 8 कार्बन होंगे, सपोज यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 कार्बन हैं, 8 कार्बन वाला डबल बॉन्ड दिखा सकता है, क्योंकि उसमें प्रोविजन होता है ट्रांस बनने की। ये सिस आइसोमर है तो ये शिफ्ट होगा, यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट होगा, वहां देयर इज द चांसेस दैट इट कैन मेंड इटसेल्फ, इट कैन डेवलप अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग अ ट्रांस वन। तो उस तरीके से जो है इसमें बन सकते हैं। इसमें देखा गया है कुछ परसेंटेज ट्रांस की बनती है, लेकिन इसमें ट्रांस की परसेंटेज 0 है। दैट इज वाई इट्स ओनली अ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज सिस। दैट्स वाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, बल्कि ये दिखाएगा।
ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। सो 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे बोल दी आपको। नंबर 1, स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड होता है या रिंग होता है, और उस डबल बॉन्ड में जो अटैच्ड एटम्स होते हैं एक कार्बन पे, डबल बॉन्ड कार्बन पे, एक साइड से दूसरी साइड से भी, वो डिफरेंट होने चाहिए। या फिर एडजेसेंट कार्बन्स पे जो रिंग में होते हैं उसमें भी एटम्स या ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट होने चाहिए, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अब अगर रिंग में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो तब दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब कार्बन्स उस रिंग में 8 या 8 से ज्यादा है। अगर कम है तो ये वाला जो है वो नहीं दिखाएगा। I hope you understand it. These are the 3 important conditions which you must remember in order to analyze the geometrical isomerism. Let me give you some examples now. कौन कौन से geometrical isomerism दिखाएंगे? Question हमारे पास है which can show geometrical isomerism. Which can show geometrical isomerism. हमारे पास ये पहला मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड तो है ही, तो चांसेस है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरी साइड से क्लोरीन, इसमें भी 2 डिफरेंट है तो ये दिखाएगा। डबल बॉन्ड है ही, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड रिंग इज मस्ट। तो जब डबल बॉन्ड आता है तो चांसेस बनते हैं। अब देखना है सेम है कि डिफरेंट है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। इसमें क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, तो ये नहीं दिखाएगा बिकॉज सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज डबली बॉन्डेड एटम्स मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। इसमें 2 डिफरेंट है ही नहीं, इसमें सेम है हाइड्रोजन, तो ये नहीं दिखाएगा। हेयर एक साइड से डबल बॉन्ड है ही, चांसेस बनते हैं। एक साइड से मिथाइल ग्रुप, दूसरे से हाइड्रोजन, ठीक। एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। या तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होने चाहिए, या फिर क्या एक साइड से इसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये नहीं दिखाएगा। अब यहां देखेंगे डिफरेंट है, एक साइड से एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये माइनस है, माइनस मीन्स देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर हियर, तो ये भी दिखाएगा। I hope you understand it. Positive means there is no electron density. So इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट्स सिंगल बॉन्ड H की वजह से, दूसरा है ही नहीं, तो it doesn't have 2 different electron densities. It cannot show. It's having 1 single bond over with hydrogen. So ये एक किस्म की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये दिखाएगा। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर देयर, तो ये दिखाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, यू कैन सी नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड तो है ही बिकॉज आई टोल्ड यू सी डबल बॉन्ड सी दिखा सकता है, सी डबल बॉन्ड एन भी दिखा सकता है, एन डबल बॉन्ड एन भी दिखा सकता है। सो एन डबल बॉन्ड एन है, एक साइड से OH, दूसरे साइड से दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज लोन पेयर ओवर हियर, यहाँ पे भी लोन पेयर ओवर हियर, तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर देयर, इट कैन शो। डबल बॉन्ड है, एक साइड से मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन है, तो ये भी दिखाएगा। ये सिस आइसोमर है, ये इसको बोलते हैं सिन आइसोमर। दे आर ऑन द सेम साइड, इट्स कॉल्ड सिन। अगर अपोजिट साइड से होंगे दैट्स कॉल्ड ट्रांस। तो ये जो है ये भी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज रिंग तो है ही, रिंग एक्ट एज डबल बॉन्ड, तो इसमें 2 डिफरेंट है, इसमें 2 डिफरेंट है, ये भी दिखाएगा। अगर ऐसे होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे यहाँ है, 3rd कार्बन की जगह 2nd कार्बन पे होगा, तो ये भी दिखाएगा। कंडीशन इज दैट एटलीस्ट 2 कार्बन्स ऑन द रिंग मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, 2 कार्बन्स, ये भी दिखाएगा। तो इसमें देखिए आप, अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, दूसरा रिंग है। अब देखिए डबल बॉन्ड की वजह से दिखाएगा कि नहीं? डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज दिस इज द डबल बॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द रिंग आर 6, तो ये नहीं दिखाएगा। दिस इज नॉट अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। अलबत्ता ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है बिकॉज ऑफ रिंग। ये जो रिंग है, रिंग की वजह से यहाँ पे 2 एटम्स डिफरेंट है, यहाँ पे भी 2 एटम्स डिफरेंट है, तो रिंग की वजह से ये दिखाता है। सो इट कैन शो GI ड्यू टू रिंग, यानी कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर रिंग है, नॉट ड्यू टू डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, बल्कि रिंग की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। बिकॉज आई टोल्ड यू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग इज मस्ट, दे एक्ट एज स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। सो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर डबल बॉन्ड नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज ये डबल बॉन्ड जो है उसमें कितने कार्बन्स हैं? 6 कार्बन्स हैं टोटल। आई टोल्ड यू इन 3rd कंडीशन दैट double bond in cycloalkenes do not show geometrical isomerism if carbon in ring are less or equal to 7. अगर 7 से ज्यादा है
तब वो डबल बॉन्ड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उस टाइम। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसमें देखिए आप, इसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, एक तो डबल बॉन्ड, दूसरा रिंग है। अब डबल बॉन्ड की वजह से ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज इट कंटेंट्स ओनली 6 कार्बन, सो ये नहीं दिखाएगा। अब रिंग की वजह से दिखा सकता है कि नहीं? ये रिंग की वजह से यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 2 डिफरेंट एटम्स है। इस पे देखेंगे, इसमें यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ से भी कोई एटम नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी वैलेंस सेटिस्फाइड है। एक वैलेंस यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। सो डबल बॉन्ड है यहाँ, ऑल 4 वैलेंस आर सेटिस्फाइड। सो एक ही साइड से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तो दूसरे साइड से है ही नहीं, तो ये भी नहीं दिखाएगा। सो इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, नीदर बिकॉज ऑफ दैट रिंग। सो ना रिंग की वजह से दिखा सकता है, ना डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरीके से जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप एनालाइज कर सकते हैं, कौन दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारे पास है, which can show, before giving you an example, let me tell you one important thing, that is important points है यहाँ। एलिन्स जो होते हैं, एलिन्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स में होंगे। डाइन्स विद conjugated, not conjugated, sorry, डाइन्स विद consecutive double bonds, consecutive double bonds, मतलब वो वाले डाइन्स जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे लेकिन वो कंसेक्यूटिव होंगे, लाइक दिस। सो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एलिन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं दिखाते, डू नॉट शो GI। सो एलिन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। नंबर 1, बाइफिनाइल्स डू नॉट शो। बाइफिनाइल क्या होता है? एक फिनाइल ग्रुप यहां, दूसरा फिनाइल ग्रुप यहां, तो 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में डालो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे मिथाइल डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, आपको लगेगा शायद ये ट्रांस है, ये सिस आइसोमर है। अगर अपोजिट करेंगे तो ट्रांस है, लेकिन बाइफिनाइल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल नहीं दिखाते। उसमें ओरिएंटेशन की वजह से जो है ये शिफ्ट होता है यहाँ, या XY डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस जो है, एरियल डिस्टेंस सेम रहता है, तो जिसकी वजह से है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं एरियल डिस्टेंस की वजह से। फिगर अबाउट एरियल डिस्टेंस, आप सिंपली याद रख सकते हैं ये चीजें। बाइफिनाइल्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एलिन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पाइरो कंपाउंड्स डू शो। लेकिन कौन से वाले? अगर आपके पास स्पाइरो कंपाउंड्स है, स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 रिंग्स, 2 or more rings having 1 common कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, एक रिंग है, दूसरा रिंग है, ये वाला कार्बन जो है इनमें कॉमन है, तो एक कार्बन में कॉमन होता है, इनको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। अब इनमें कौन से वाले GI दिखाता है? याद रखना चाहिए, ऑड रिंग्स वाले जो है GI दिखाता है, दे कैन शो GI। सो जिनमें ऑड रिंग्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, 3 ऑड रिंग्स हैं, तो इसमें अगर यहाँ पे H है या मिथाइल है तो सेकंड कंडीशन लाजमन होनी चाहिए। सो मिथाइल इज ऑन द सेम साइड, इट्स सिस। अगर अपोजिट साइड्स होंगे तो ट्रांस होगा। ये दिखाएगा, कब दिखाएगा? जब इसमें रिंग्स होंगे ऑड। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, सो ऑड रिंग्स हैं इसमें, तब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। अगर इवन रिंग्स होंगे, इफ देयर आर इवन रिंग्स देन देयर इज नो GI। सो GI नहीं होगा अगर स्पाइरो कंपाउंड्स में इवन रिंग्स होंगे। 2 रिंग्स होंगे या 4 रिंग्स या 6 रिंग्स, उसमें GI नहीं होंगे। इवन इफ यू हैव हाइड्रोजन मिथाइल 2 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड, तब भी ये नहीं दिखाएगा। कंडीशन इज ऑड रिंग्स होने चाहिए पहले, उसके बाद में जो है एटम्स एक कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, 2 या इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट होने चाहिए, तब आपका जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। सो वी आर हैविंग सम मोर एग्जांपल्स ओवर हियर। अगर आप देखेंगे इन मॉलिक्यूल्स में, सो लुक एट द फर्स्ट मॉलिक्यूल।
अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड होना चाहिए और रिंग होना चाहिए। डबल बॉन्ड ये एक है, डबल बॉन्ड ये भी एक है और रिंग एक है, ठीक। सो देयर कैन बी 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। अब देखिए इस डबल बॉन्ड की वजह से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये उस रिंग में है जिसमें खाली 6 कार्बन्स हैं, होने चाहिए 8 या 8 से ज्यादा, तब ये दिखा सकता है। सो इसमें इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। सो नॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक। एक दूसरा, रिंग की वजह से बनेगा कि नहीं? देखिए एक साइड से इसमें कितने बैलेंसेस हैं? 1 2 3, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन बी है 4। सो इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है। अब देखिए इस कार्बन पे जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। इसमें एक ये है, दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 और डबल बॉन्ड 4 बराबर है। सो एक साइड से अगर ये ग्रुप है, दूसरे साइड से कोई ग्रुप है ही नहीं, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज या ग्रुप्स होने चाहिए, इसमें एक ही ग्रुप है, दूसरा है ही नहीं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा रिंग की वजह से। सो नॉट बिकॉज ऑफ रिंग आल्सो। अब देखिए यहां इस वाले डबल बॉन्ड में, इस वाले डबल बॉन्ड में जो है एक साइड से हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप, इस कार्बन पे एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से भी हाइड्रोजन। सो 2 डिफरेंट है ही नहीं बल्कि 2 सेम है, ये भी नहीं दिखाएगा। सो दिस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब देखिए इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर्स 2 है यहां, एक तो डबल बॉन्ड है, दूसरा रिंग है। अब डबल बॉन्ड की जगह ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? बिकॉज दिस इज द डबल बॉन्ड विच कंटेंस इन विच द रिंग इज कंटेंस ओनली 6 कार्बन, तो नहीं दिखाएगा। अब देखिए इसकी वजह से दिखाएगा, रिंग की वजह से कि नहीं। यहां पे कार्बन है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन होगा बिकॉज 4 वैलेंसी फिर भी है। इसमें एक इथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए। सो इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ऑब्वियसली ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। सो Gi कैन बी शोन नॉट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड बट बिकॉज ऑफ रिंग। शाबाश। इसमें देखिए आप, इसमें यहां से स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहां से डबल बॉन्ड दूसरा है, यहां से तीसरा है और ये रिंग है। पहले हम देखेंगे इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। इस डबल बॉन्ड की वजह से क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज इन द रिंग विच कंटेन्स जस्ट 6 कार्बन्स, होने चाहिए 8 या 8 से ज्यादा, तो ये नहीं दिखाएगा। अब रिंग की वजह से देखेंगे रिंग। अब देखिए यहां इस कार्बन पे और इस कार्बन पे देखिए, इसमें एक ग्रुप ये पूरा है, दूसरा हाइड्रोजन होगा क्योंकि वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लेके। इसमें 1 2 3 वैलेंसी, हाइड्रोजन होगा 4 वैलेंसी, तो इसमें ये एक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। सो इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ऑब्वियसली रिंग की वजह से ये शो करेगा Gi। अब देखिए ये डबल बॉन्ड करेगा कि नहीं। इसमें एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरा साइड से मिथाइल, तो ये भी शो करेगा। इसमें देखिए आप इस वाले डबल बॉन्ड में, इस कार्बन पे एक साइड से इथाइल, दूसरे साइड से मिथाइल, इस कार्बन पे एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरे साइड से ये पूरा ग्रुप, ये भी शो करेगा। सो ये Gi शो करेगा because of this double bond, because of this double bond, and because of this ring, not because of this double bond. I hope you understand it. How you can see the geometrical isomers in a molecule. आप काउंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसमें कितने बनेंगे? इसकी वजह से कोई नहीं, लेकिन रिंग की वजह से 2 बनेंगे, एक सिस दूसरा ट्रांस, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? इस डबल बॉन्ड की वजह से कोई नहीं आएगा, रिंग की वजह से आएगा। रिंग की वजह से सब जब रिंग दिखाएगा 2 बनेंगे, 2 बिकॉज ऑफ रिंग, 2 बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, 2 बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो 6 आएंगे इन टोटल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरीके से जो है आपको कंडीशंस याद रखनी है। कंडीशंस याद करने के बाद में जो है आप इजीली बता सकते हैं which molecules can show geometrical isomerism and which cannot. I hope you understand it. I'll come up with more such videos hopefully in the next segment. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।